Pulses means impulses, and how we can generate impulses. To generate impulses, we should require there is a requirement of quantizer and a sampler. Sampler is an electronic gadget which is used to convert an analog signal into the pulses. Okay, digital pulses. So you understand what is the meaning of pulse modulation. In pulse modulation, the message signal is of the nature of the analog in nature, but the carrier should be in the pulse nature, and the amplitude of the carrier is varying with respect to the instantaneous value of the amplitude of the message signal. So this kind of modulation is known as amplitude pulse modulation. Similarly, pulse width modulation and pulse position modulation. There are the two another classification of the pulse time is the pulse amplitude modulation, and another is the pulse time modulation. Pulse time modulation further divided into two categories, namely pulse width modulation and the pulse position modulation. Okay. So if we have a xt is a message signal. It is analog in nature, like this one. I am taking the small part of message signal. Message signal can be minus infinite to plus infinite, and it can be either periodic or not periodic. Like our voice signal is not a periodic signal. If we plot our voice signal with respect to the time, it will be a sort of different kinds of amplitudes. But in continuous time signals or the periodic signals, we have only certain set of amplitude levels. So our message signal can be analog. Message signal can be continuous or can be non-continuous, periodic or not periodic also. So I'm taking the small portion of our message signal here. This is the message signal, and correspondingly I am taking the pulse train. Impulse train is nothing but a this type of pulse. This is the pulse. This is our carrier CT. So in this carrier signal, the width of the pulse is tau. Width of the pulse is tau. When I'm taking this as a carrier and modulate this carrier with the message signal, which is of the analog in nature, like this one. This is our analog signal, and carrier we have taken CT as the set of pulses. When we superimpose both of them, we will get these signals. If I am using the pulse amplitude modulation, I am getting this signal. The amplitude of the carrier, which is a pulse train having the width tau, is the amplitude is varying with respect to the amplitude of the message signal, like this. The message signal amplitude is increasing in this duration. From here to here, it is increasing in this duration. Similarly, the amplitude of the carrier signal is increasing in this duration. Okay. When the amplitude of the message signal is decreasing in this duration, the amplitude of the carrier, which is a pulse train, is decreasing accordingly. And when the amplitude of the message signal going to be negative, the pulse is also going to be negative. Here, this is an error. ये गलत यहाँ पे बना दिया गया है. ये नेगेटिव है एम्पलीट्यूड. here the amplitude of the message signal is negative. The amplitude of the modulated signal is also will be negative. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये पल्स यूं बनेगी नीचे की तरफ. ओके, तो these are the amplitudes level which is we have designed this kind of circuit, which is a pulse amplitude modulated circuit, and the output of the pulse modulated circuit is of this kind. So in pulse amplitude modulation, we have taken the message signal as a analog in nature, and the carrier is in the form of pulse train. And after the modulation, we will get this kind of signal. This is a pulse amplitude modulated signal. Now, pulse width modulation.
as we already state that the width of the pulses in the carrier signal having the width tau. This is our carrier signal. This is our carrier signal having the width tau. Each pulse have a width tau unit as mentioned here. Okay, all pulses have a width tau. Okay, these all pulses are of the same width. But when we superimpose this carrier over the analog signal and we want to generate the pulse width modulated signal, I am getting this signal. Here, the width of the pulses is maybe tau or maybe greater than tau and maybe less than tau. Okay, that means in carrier, all pulses have the width tau, but in pulse width modulation, it may be tau or it may be less than or equal to tau or it may be greater than equal to tau. Okay, the width of the pulses. So how the width of the pulses is increasing or decreasing? It is increasing or decreasing according to the message signal's amplitude. When the message signal's amplitude increasing in this region, here in this region, from here to here, message signal's amplitude is increasing. Similarly, the width of the pulse is increasing continuously, and the maximum width of the pulse is achieved at this point where the maximum amplitude of the message signal is achieved. Here we get the maximum width of the pulse, like this one. This may be tau plus 3, tau plus 4, but it is greater than tau. But again, in this region, when the message signal's amplitude decreasing, like here, the width of the pulse continuously decreasing accordingly, like here. Okay, so if I say at this point, the width of the carrier is tau, and at this point the width of the carrier is tau, but at this point the width of the carrier will be tau plus something, tau plus 5, tau plus 6, and at this point the width of the carrier will tau plus 1. At this point, the width of the carrier will tau plus 2. At this point, the width of the carrier tau plus 3, and the maximum width of the carrier will be achieved at this point, because this is the top level of the message signal. So, according to the increment in the message signal's amplitude, we will getting the carrier signal having increasingly width of the pulses. Okay, and when the amplitude of the message signal decreasing, like in this region, we will getting the carrier signals having tau in the similar way of decrement. So at this point, what we will get? We will get message signals, carrier signals width less than tau. Less than tau means, because this point, the amplitude of the message signal is minimum. So at this point, in the modulated signal, we will get the minimum width of the pulse. So if I ask you where is the maximum width of the pulse, you can easily say that when the amplitude of the message signal is maximum. And where you will get the minimum width of the pulse, you can say that when the amplitude of the message signal will be minimum, like this. So this is tau minus 3 or tau minus 4 or tau minus 5. The width of the pulse is tau minus something. Okay, any doubt? If you have any doubt, please ask me. वॉइस ब्रेक हो गया था बीच में। वॉइस ब्रेक हो गया था, तो आपको ये समझ आया पल्स विड्थ? यस सर। अगर पल्स विड्थ में कोई प्रॉब्लम, देखिए जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वैसे पल्स की विड्थ बढ़ेगी। मैंने बताया जब कैरियर सिग्नल होता है उसी में जो पल्सेस होती हैं उनकी विड्थ टॉ होती है, फिक्स है वो, तो वो हमेशा पूरे ड्यूरेशन में कैरियर की जो विड्थ है वो टॉ ही रहेगी। लेकिन जब आप मॉड्यूलेशन कर रहे हो इसको, इस तरह से मॉड्यूलेशन कर रहे हो कि PWM आपको जनरेट करना है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेट करना है, तो जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा मैसेज सिग्नल का वैसे ही पल्स की विड्थ जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, यानी कि कैरियर तो नहीं है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल लोगे आप कैरियर ही, तो कैरियर की जो विड्थ है टॉ वो इंक्रीज करेगी जब एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल इंक्रीज करेगा। जब एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल डिक्रीज करेगा तो जो कैरियर की विड्थ है कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ ऑफ द मैसेज जो आपकी कैरियर सिग्नल
की पल्सेस की होगी वो मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा कि मैसेज सिग्नल का, उसके हिसाब से एडजस्ट करेगी अपने आप को। तो इस तरह से ये आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। तो ये काम कौन करता है? ये आप तो कर नहीं पाओगे इसको, ये काम जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के थ्रू किया जाता है। तो उन सर्किट्स को पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर कहा जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो बनाए जाते हैं, अभी उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन हो कैसे रहा है। अब अच्छा एक बात बताइए, अगर ये सिग्नल आप ट्रांसमिट करते हो, अब रिसीवर पर आप ये सिग्नल रिसीव करते हो, तो आप कैसे पता लगाओगे? मैसेज सिग्नल से कैसे रिकवर करोगे? पल्स की विड्थ के हिसाब से। आपको पता है कि पल्स की विड्थ हमारी जो कैरियर की थी वो टॉ थी। जब टॉ प्लस 5 हुई तो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलना है, और जब टॉ माइनस 5 हुई तो आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलना है। तो जब मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड आपको पता लग गया तो आप उसके बीच का प्लॉट कर सकते हो, तो मैसेज सिग्नल रिकवर हो गया। ये तो उस केस में है जब मैसेज सिग्नल आपका कंटिन्यूस टाइम नेचर का या पीरियोडिक सिग्नल था। लेकिन अगर मैसेज सिग्नल कंटिन्यूस नेचर या पीरियोडिक ना हो, नॉर्मली जैसे हमारा वॉइस सिग्नल होता है, रैंडम रैंडम नेचर का होता है, तो उस केस में देर आर सो मेनी विड्थ विल बी अवेलेबल एट द रिसीवर एंड। सो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन द width of the width received at the receiver end, we can plot the message signal. So envelope detector is used in this case, like envelope detector used in the AM modulation case. ओके, यहाँ पर क्या क्या एनवेलप डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करेगा? इनका टॉप डिटेक्ट करेगा, टॉप को प्लॉट करता रहेगा वो। ये टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप है, और क्लाइंट प्लॉट कर देगा, तो वो मैसेज सिग्नल हो जाएगा। उसके बीच का जो इंटरवल है, उसके बीच का इंटरवल मैसेज जो एम्पलीट्यूड लेवल होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, उनके बीच का हो जाएगा। तो उस हिसाब से वो एडजस्ट करता है। तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में क्या होता है? द विड्थ ऑफ द पल्स, एवरी पल्स ऑफ द कैरियर सिग्नल हैविंग द विड्थ टॉ. So after the demodulation, when we get the ppm pulse position modulated wave, the pulse width always be the tau unit, but the position of the pulse, that means the distance between two pulses here. मैं आपको दिखा देता हूँ कैरियर एक बार। ये आपका कैरियर सिग्नल है, इसमें पल्स की विड्थ तो टॉ है, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दो पल्सेस के बीच की डिस्टेंस, वो कुछ है। तो ये जो डिस्टेंस है ये वेरी करेगी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में। पल्स की विड्थ तो टॉ ही रहेगी, पर इनके जो दो पल्सेस के बीच की डिस्टेंस है वो वेरी करेगी। दैट मीन्स कि वो डिस्टेंस कम या ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। जब मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो पल्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो भी बढ़ेगी, यानी कि ये इधर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ बच्चों, ये गलत हो गया है। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में ये जो पल्स की विड्थ है ये भी कांस्टेंट रहती है, पल्स की बीच के डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहती है, बस केवल उसकी पोजीशन चेंज होती है। पोजीशन इन द सेंस कि अगर मैं अभी ओरिजिन की बात करूं, ये ओरिजिन है और ये पल्स आपकी ओरिजिन पर इस तरह से है, तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी, और ये पल्स शिफ्ट होने के बाद में जो ओरिजिन पर नेक्स्ट पल्स आ जाएगी वो ये आ जाएगी, इसका ये वाला पार्ट ओरिजिन पर आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ये शिफ्ट हो रही है। कैसे? जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा। जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो ये पोजीशन आपकी जो ओरिजिन था, ये माना मिडल में ओरिजिन था, ये मिडल में ओरिजिन ना होकर अब ये राइट हैंड साइड में पल्स शिफ्ट हो जाएगी, तो ओरिजिन इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो ये कैसे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जो पोजीशन ऑफ द पल्स है वो शिफ्ट होगी, वो अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड होगी। अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो पल्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगी, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होती चलेगी। अभी इस पल्स में देखिए, इस पल्स में ये लाइन जो है वो मिडिल में थी, लेकिन इस पल्स में लाइन मिडिल में ना होकर कोने पे आ गई। इधर फिर मैं गलत हूँ। क्या गलती है? गलती ये है कि जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो पल्स की जो ड्यूरेशन, पल्स का जो पोजीशन है वो राइट हैंड साइड में मूव करेगी। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिए। व्हेन एम्पलीट्यूड इंक्रीजिंग, इस पीरियड में देखो, इस पीरियड में एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, हमने यहाँ 3 लाइनें ड्रॉ की। इस पीरियड में एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, और वी हैव प्लॉटेड द 3 लाइंस। ऑल लाइंस आर इंटरसेक्ट बिटवीन द पल्सेस। मिडल में, पल्स के मिडल में काट रही है ना, पल्स के मिडल में काट रही है। सिमिलरली पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में भी ये पल्स को मिडल में काट रही है, पल्स ये जो 3 लाइनें हैं।
ये एग्जैक्टली मिडिल में होगी, लेकिन पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में ये मिडिल में ना होकर ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएंगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस पल्स की जो ये वाली जो मिडिल में ना होकर ये कोने पे चली जाएगी लाइन, जैसे इस पल्स में होगा। सिमिलरली जिस हिसाब से राइट हैंड साइड गई है जब एम्पलीट्यूड बढ़ा था, जब एम्पलीट्यूड घटेगा तो ये वापस लेफ्ट हैंड साइड में आएगी पल्सेस। तो इनकी जो पोजीशन है वो जब मिनिमम एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा तो ये कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड में खिसक चुकी होगी, और जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा मैसेज सिग्नल का तो ये मैक्सिमम आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो चुकी है। तो पोजीशन की शिफ्टिंग से हम एम्पलीट्यूड को रिलेट कराते हैं। तो रिसीवर पर भी जो पल्स की पोजीशंस हैं उसको पोजीशंस को डिटेक्ट करके हम जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा उसको डिटेक्ट करते हैं रिसीवर एंड पर, जो इसका डीमॉड्यूलेटर होता है। तो ये बात क्लियर हो गई है आपको। फिर हमने प्रीवियस क्लास में सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ी थी। तो सैम्पलिंग थ्योरम ये कहती है कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है सैम्पलिंग के लिए, सैम्पलिंग कौन करता है? एक सैम्पलर सर्किट करता है। और सैम्पलर सर्किट क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को ब्रेक करता है, पल्सेस की फॉर्म में ब्रेक करता है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पल्सेस है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पल्सेस होंगी वो कितनी होंगी? मिनिमम जो दो पल्सेस के बीच की डिस्टेंस होगी, दो पल्सेस के जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत मैटर करती है रिसीवर एंड पर सिग्नल को रिसीव करने के लिए। दैट मीन्स कि अगर दो पल्सेस के बीच की डिस्टेंस एक डिस्टेंस से कम होगी तो रिसीवर पर दोनों पल्सेस ओवरलैप हो जाएंगी, रिसीवर पर आपको जो सिग्नल में डिस्टॉर्शन मिलेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस फिक्स होती है दो पल्सेस के बीच में जो सैम्पलर प्रोवाइड करता है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस एफएम। दैट मीन्स द सैम्पलिंग ड्यूरेशन, सैम्पलिंग frequency should be greater than equals to twice of fm. fm is nothing but a maximum frequency component in the signal, या मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो आप। फिर हमने पढ़ा था कि सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। तो कुछ सैम्पलर्स होते हैं, इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग होती है, नेचुरल सैम्पलिंग होती है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग होती है। इनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था प्रीवियस क्लास में। तो जो इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग है वो जैसे माना ये मैसेज सिग्नल है आपका और ये इंपल्स ट्रेन है। इंपल्स ट्रेन की विड्थ क्या है? नेग्लिजिबल विड्थ है। तो आइडियल सैंपलिंग तो ये कहती है कि इंपल्स शुड हैव अ नेग्लिजिबल विड्थ। तो जब आप इसको मॉड्यूलेशन करोगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ pulse, this kind of signal. This is pulse amplitude modulated signal. When we taking the pulse of a negligible width, तो ये तो आइडियल सैंपलिंग हुई, इसको कहते हैं आइडियल सैंपलिंग। लेकिन नेचुरली हमारे पास कोई भी आइडियल सैंपलर नहीं है, यानी कि पल्स की विड्थ जो है नेग्लिजिबल हो या पल्स की विड्थ बहुत कम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा जब भी इम्पल्स जनरेट होती हैं तो दैट शुड सम विड्थ इज एसोसिएटेड विद द पल्सेस। तो कुछ ना कुछ विड्थ ऑफ पल्सेस की होगी। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग इज द आइडियल सैंपलिंग, और ये प्रैक्टिकल सैंपलिंग नहीं है। थियोरेटिकली तो ये करेक्ट है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विड्थ की जब हम सैंपलिंग करते हैं तो पल्स की ड्यूरेशन, पल्स की विड्थ कुछ ना कुछ तो होगी। तो जब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल सैंपलिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है नेचुरल सैंपलिंग, एक है फ्लैट टॉप सैंपलिंग। तो नेचुरल सैंपलिंग हमने पढ़ी थी, यही नेचुरल सैंपलर भी है। इसमें एक स्विच यूज किया जाता है, मैसेज सिग्नल आपका xt है। व्हेन वी अप्लाई द मैसेज सिग्नल ओवर अ स्विच, at the output of this switch you will get a impulses having the width tau like this one, having the width tau like this one. Here the width of the pulses is tau, and the amplitude of the pulses is decreasing or increasing with respect to the message signal's amplitude. So here in this region message signal's amplitude is increasing, so the width of the amplitude of the pulses is increasing for the pulse amplitude modulation. ये pulse amplitude modulation का केस है। तो यहाँ आप एक चीज देखिए, ये जो पल्सेस हैं, पल्स का जो टॉप है ये फ्लैट नहीं है। फ्लैट नहीं है मतलब जो मैसेज सिग्नल का टॉप, मैसेज सिग्नल का जो शेप है वैसी ही शेप की ये पल्सेस आपको मिल रही है। एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन जो एम्पलीट्यूड का टॉप है वो कैसा है? ऐसा है जैसे कि मैसेज सिग्नल है आपका। तो शेप जो है ये डिसाइड करती है कि ये कौन सा सैम्पलर है। अगर इस तरह का सैंपल इम्पल्सेस निकलती हैं जिसमें जो टॉप है वो फ्लैट नहीं है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल सैम्पलिंग। और दूसरे तरह का दूसरा हमारे जो पल्सेस मिलती हैं हमें जिसमें टॉप जो होगा
पल्सेस का जो टॉप होगा, एम्पलीट्यूड तो वेरी करेगा लेकिन पल्सेस का जो टॉप होगा वो फ्लैट होगा, तो उसके लिए क्या होता है, उसको कहते हैं फ्लैट टॉप सैंपलिंग। तो नेचुरल सैंपलिंग में यही चीज है कि जब आपका ये मैसेज सिग्नल है, व्हेन यू दिस इज योर मैसेज सिग्नल, is in this message signal, this is the reason where the amplitude of the message signal is increasing, and this is the reason, uh, sorry, this is the reason where the amplitude of the message signal is decreasing. So if you have a carrier signal in the form of pulses having the pulse width of tau unit, because this is a flat natural sampling, so when you superimpose both of them, uh, and the amplitude, and you want to be generate the pulse amplitude modulated wave. In pulse amplitude modulated wave, the width and the position of the carrier signal is constant, remaining in all the process in between the process, but the amplitude of the carrier is varying with respect to the variation in the message signal's amplitude. So what you will get this kind of signal, and in this kind of signal, the top of the amplitude and top of the pulses is not flat, it is of the shape of message signal shape. Okay, but amplitude is continuously decreasing or increasing according to the message signal's amplitude, but top is also not flat. Here in the carrier signal you can see that the top is flat everywhere, top of the pulse is flat, but in this figure the top of the impulses are not flat, it is it is having the shape of message signal. Okay, like this one, this is the message signal, this one, so this is the shape of the top of the impulses. So this is also a kind of sampling known as a natural sampling. But what will be the difference between the natural sampling and the flat top sampling? In flat top sampling or the rectangular pulse sampling दिखा जाता है इसको, the pulse have the flat top, यानी कि इसका जो पल्स है, पल्स देखो सेम है, फ्लैट टॉप सैंपलिंग और नेचुरल सैंपलिंग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। क्या बेसिक डिफरेंस है कि जो फ्लैट टॉप सैंपलिंग में जो पल्सेस का जो टॉप होता है वो फ्लैट मिलता है, वो उसकी जो शेप है वो मैसेज सिग्नल की शेप नहीं होती है, उसकी शेप जो होती है वो फ्लैट मिलती है, जैसे यहाँ पर आपने देखा टॉप फ्लैट है ना, इस तरह से। एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यहाँ नेगेटिव साइड में देखो पल्स चली गई, लेकिन स्टिल द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पल्स इज फ्लैट। तो ये फ्लैट टॉप सैंपलिंग का यूज क्या है बेसिकली, इसका यूज कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने इसका टॉप ही डिटेक्ट करना होता है रिसीवर एंड पर। अगर टॉप में वेरिएशन आएगा तो वहां पर नॉइस का इंटरफेरेंस इसमें बहुत ज्यादा होगा। तो फ्लैट टॉप सैंपलिंग जो होगी ये इस नॉइस के इंटरफेरेंस को कम करती है ऑन द टॉप लेवल। तो इसके लिए जो सर्किट यूज किया जाता है फ्लैट टॉप सैंपलिंग का वो ये है, इसमें दो आपके मोस्ट फैट यूज किए गए हैं, ये आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं G1 और G2, और ये स्विचिंग सैम्पलर और ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज स्विच की तरह यूज किया है। जब आप मैसेज सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करते हो तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको रिसीवर पर ये आउटपुट पर पल्स मिलेंगे, जो पल्स होंगी आपकी वो किस नेचर की होंगी, वो फ्लैट नेचर की होंगी। और जब आप इसी पर इसकी जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है, इस G1 पर आप मैसेज सिग्नल अप्लाई करोगे, G2 पर आप कैरियर सिग्नल अप्लाई कर दोगे, तो बिकॉज ऑफ द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर यू विल गेट अ फ्लैट सरफेस एट द टॉप। तो ये आप एक बार देख लेना कि क्या होता है फ्लैट टॉप सैंपलिंग और बेसिकली नेचुरल सैंपलिंग में डिफरेंस। अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर G1 G2 क्या है सर? ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, FET ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, जैसे आपने BJT पढ़ा था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यस सर। तो ये वो है। जरा इसमें एक बार देखिए आप फ्लैट टॉप सैंपलिंग में इट इज क्वाइट इजी टू गेट फ्लैट टॉप सैंपल्स। फ्लैट टॉप सैंपल्स को फाउंड करना वो इजी होता है ना। इन फ्लैट टॉप सैंपलिंग the rectangular pulses samples, the top of the samples remain constant and it is equal to the instantaneous value of the baseband signal xt,
at the start of the sampling. The duration or the width of each sample is tau and the sampling rate is equal to fs is equal to 1 upon capital T. Sampling rate तो आपको पता ही है. So यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सब कुछ. अब आते हैं हम मल्टीप्लेक्सिंग पे. आपने ये शब्द पहली बार सुना होगा, मल्टीप्लेक्सिंग. मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, आपने सुना है कभी? यस सर. ओके, तो मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम आपको पढ़ना है. टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दैट मीन्स यू हैव अ टाइम स्लॉट. यू हैव अ टाइम स्लॉट, माना आपको क्या करना है, 5 यूजर हैं, 5 यूजर को अपने 5 सिग्नल्स ट्रांसमिट करने हैं. ट्रांसमिट एंड से रिसीवर एंड पर 5 यूजर को सिग्नल ट्रांसमिट करना है. तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ये ऑप्शन है कि जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड है, जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास वो फिक्स्ड है. तो एक काम तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक यूजर को एक फ्रीक्वेंसी दे दी कि भाई आप जैसे आपके पास है 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज का बैंड है और 5 यूजर हैं. तो आपने कहा है पहले यूजर को कि आप 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर और 4 मेगाहर्ट्ज तक का बैंड आप यूज कर लो. फिर दूसरे यूजर को कह दिया आप 4 मेगाहर्ट्ज से 6 मेगाहर्ट्ज का यूज कर लो. फिर तीसरे यूजर को कह दिया आप 6 से 8 यूज कर लो. और फोर्थ को बोल दिया आप 8 से 10 यूज कर लो. फिफ्थ को बोल दिया आप 10 से 12 यूज कर लो. तो फ्रीक्वेंसी, एक बैंड था 2 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज का बैंड, 5 यूजर में आपने उसको इक्वली डिवाइड कर दिया. तो ये जो डिवीजन कहलाता है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. एफडीएम कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. लेकिन अगर ऐसा किया आपने कि आपके पास वही 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर 12 मेगाहर्ट्ज का बैंड है और आपने पहले यूजर को कहा कि पहले 1 घंटे आप अपना सिग्नल ट्रांसमिट करो इस बैंड पे, पूरे बैंड पर. पहला 1 घंटा ये बैंड आपके लिए है. 2 मेगाहर्ट्ज से और 12 मेगाहर्ट्ज की यानी कि 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको हमने 1 घंटे के लिए दे दी. फिर दूसरे यूजर को कहा कि अगले 1 घंटे में आप यूज करो इसको. फिर तीसरे यूजर को कहा कि आप थर्ड आवर में, थर्ड घंटे में आप यूज करो. फोर्थ यूजर को कहा फोर्थ आवर में आप यूज करो. फिफ्थ यूजर को कहा कि फिफ्थ आवर में आप यूज करो. और फिर से वापस फर्स्ट यूजर को फिर से उसका नंबर आएगा 6th आवर में फिर उससे आपने. तो इस तरह से आपने जो असाइन किया है पूरा बैंड एक यूजर को पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, इसको कहा जाता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. इनका दोनों का अपना फायदा होता है, दोनों का नुकसान होता है. ट्रांसमिशन के टाइम पे अगर एक यूजर को ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है और नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है, तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा नहीं सकते यूजर की. क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि आपको तो नंबर ऑफ यूजर्स को, हर एक यूजर को कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी सिग्नल ट्रांसमिशन करने के लिए. लेकिन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में आप पूरा का पूरा बैंड एक यूजर को दे देते हो पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो अपना कम्युनिकेशन उस टाइम में कर सकता है. तो पूरी बैंडविड्थ की उसकी लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं. तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं. तो बेसिकली ये सिग्नल ट्रांसमिशन में ये मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जो टेक्निक्स है वो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स कहलाती हैं. तो इन केस ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग द कंप्लीट चैनल बैंडविड्थ इज अलॉटेड टू द वन यूजर फॉर द फिक्स्ड टाइम स्लॉट एज मेंशन्ड हियर. ओके, in pulse amplitude modulation, pulse position modulation and pulse duration modulation या pulse width modulation कहते हैं इसको, is present for a short duration and for the most of the time between the two pulses. No signal is present. This free space between the pulses can be occupied by pulse from other channels. This is known as time division multiplexing. Thus, time division multiplexing makes maximum utilization of the transmission channel. तो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने वही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को कैसे डिवाइड किया. इसने कहा कि जैसे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है. पल्सेस, उसमें पल्सेस प्रेजेंट होती हैं फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम बिटवीन द टू पल्सेस नो सिग्नल इज प्रेजेंट. जो दो पल्सेस के बीच में जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो वेस्ट हैं. केवल पल्सेस पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दो पल्सेस के बीच का ड्यूरेशन जो है वो वेस्ट है. तो उस ड्यूरेशन को भी ये यूज कर पा रहे हैं कैसे, किसी और सिग्नल को उसमें इंसर्ट करा के. तो ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कहलाती है. इनकी दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में एक तीसरी फ्रीक्वेंसी इन्होंने ड्रॉप कर दी. तो ये जो सिस्टम होता है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की मदद से किया जाता है. तो आपको बेसिकली हमें ये
टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिर्फ कंसेप्ट समझना है और कुछ नहीं है, आपको जनरेट नहीं करनी है वेव। इस तरह से जैसे कि ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक पल्स ये है और एक पल्स ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 1/fs हो गया, वही फंडामेंटल टाइम पीरियड FTS है ना। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में कितनी रखनी है, जैसे कि ये दोनों सैंपल्स ओवरलैप ना करें रिसीवर एंड पर। तो ये हमने कहा कि 1/fs है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने इसी पल्स, क्योंकि ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो गया है, लेकिन ये बीच की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो एम्पलीट्यूड लेवल है, ये बीच का जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, इस बीच के ड्यूरेशन में कोई भी पल्स नहीं है, खाली पड़ा है। तो इस खाली ड्यूरेशन में भी हम कोई पल्स इंसर्ट कर देते हैं, लाइक दिस वन। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो ये वाला इसका टॉप डिटेक्ट होगा, इसका टॉप डिटेक्ट होगा, इसका टॉप, पहला जो सिग्नल है वो इस पर चला गया, फिर हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी और नेक्स्ट यूजर की फ्रीक्वेंसी को ये असाइन। जब आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो डेफिनेटली सैम्पलिंग ड्यूरेशन भी चेंज हो जाएगा। तो जो पल्सेस बनेगी दूसरे यूजर के लिए वो इसके बीच में एक यहाँ बन जाएगी, एक यहाँ बन जाएगी, एक यहाँ बन जाएगी, यानी कि कुछ टाइम शिफ्टिंग के बाद में फिर फिर मैंने सैम्पलिंग पीरियड फिर स्विच कर दिया, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फिर चेंज कर दी, तो उससे सैम्पलिंग फंडामेंटल पीरियड फिर चेंज हो गया। वो इस तरह से कि एक ये और एक ये। तो इस तरह से मैंने ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करके जो सैम्पलिंग ड्यूरेशन है वो दूसरे यूजर को असाइन कर दिए, तो वो उस ड्यूरेशन में अपने फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट कर सकता है। तो इस तरह के कंसेप्ट को ये मल्टीप्लेक्सिंग कंसेप्ट कहा जाता है कि जब एक ही चैनल में आप नंबर ऑफ यूजर्स को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो एक सैंपल्स होता है, जो दो सैंपल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, आप मैक्सिमम इसी को यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि फिर तो वो सैम्पलिंग ओवरलैप होगी। तो इस ड्यूरेशन को जो कहा जाता है, इस ड्यूरेशन को एक फ्रेम कहा जाता है, इस पूरे ड्यूरेशन को एक फ्रेम कहा जाता है, ठीक है। अभी आप इसको डिटेल समझने की जरूरत नहीं है आपको, ये काम कैसे होता है ये देख लो बस। तो ये काम जो होता है इस तरह से एक लो पास फिल्टर्स के सर्किट्स बना दिए जाते हैं और एक पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर यूज कर दिया जाता है, चैनल है और पल्स एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर सर्किट है। ये सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है इनके बीच में, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के बीच में। ये रिसीवर एंड पर होगा, ये रिसीवर एंड पर होगा और ये ट्रांसमिटिंग एंड पर होगा, ये ट्रांसमिटिंग एंड पर होगा। और जब आप इसको सिग्नल्स को उसके बाद एक लो पास फिल्टर यूज किया जाता है रिसीवर एंड पर, तो वहां से वो अलग अलग सिग्नल्स को अलग अलग ड्यूरेशन के जो सिग्नल्स आ रहे हैं, अलग अलग ड्यूरेशन पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको अलग अलग कर देता है। तो ये TDM सिस्टम्स होता है, इसको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम कहा जाता है, यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स सिस्टम। मल्टीप्लेक्स क्या है कि तीन या चार यूजर के सिग्नल्स आपने मर्ज करके भेजे हैं, लेकिन क्योंकि पल्सेस के बीच की ड्यूरेशन अलग है ना, फंडामेंटल टाइम पीरियड अलग है, तो इस वजह से वो ओवरलैप नहीं होते हैं और रिसीवर पर वो अलग से रिसीव कर लिए जाते हैं। तो आपने क्या हुआ कि जो पल्स की जो बैंडविड्थ की थी, बैंडविड्थ आपने ज्यादा ऑक्यूपाई कर ली, ज्यादा यूज कर लिया बैंडविड्थ। तो इस तरह के सिस्टम्स को पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्लियर हुआ आपको? अभी इसमें कंफ्यूजन होगा मैं जानता हूँ। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है, जैसे कि माना फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो पहला यूजर है ट्रांसमिटिंग एंड पर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है, दूसरे यूजर की मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो उसका ड्यूरेशन चेंज हो गया, तीसरे यूजर का ड्यूरेशन चेंज हो गया, चौथे यूजर का ड्यूरेशन चेंज हो गया। ये जो ड्यूरेशन मैं चेंज कर रहा हूँ ट्रांसमिटिंग एंड पर, यही ड्यूरेशन की इंफॉर्मेशन रिसीवर एंड को होनी चाहिए, तभी तो वो उन्हीं पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर उन सिग्नल्स को रिसीव करेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको कैरी कराने के लिए, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ अलग से सिग्नल्स ट्रांसमिट करने पड़ते हैं, अलग चैनल यूज करना पड़ता है, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर सैम्पलिंग पीरियड क्या रखा गया है और हर टाइम ड्यूरेशन के बाद जो सैम्पलिंग पीरियड चेंज हुआ है फॉर द डिफरेंट यूजर के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचाने के लिए आपको दूसरी फ्रिक्वेंसीज यूज करनी पड़ती है। इसी को सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। अगर इसमें कुछ चेंज आता है तो हमारा पहले यूजर की फ्रिक्वेंसी कुछ थी, उसने रिसीवर पर उसने वो फ्रीक्वेंसी ना चेंज करके दूसरे यूजर की फ्रीक्वेंसी को मतलब सेट कर दी, तो यूजर ने पहले यूजर ने थ्रो किया था, अब आप उसे कंसीडर कर रहे हो रिसीवर एंड पर दूसरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, तो ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाया। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए आप यहाँ पर जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं और उन यूजर्स को कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आपने असाइन की है
वो इंफॉर्मेशन आपको रिसीवर पर पहुंचानी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉइस को। नॉइस पढ़ ले बच्चों, ये कुछ क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस सर। ओके, तो आप टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का पढ़ोगे, आपको खुद आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज आपका काम क्या है, देखिए आपको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़नी है। ये टीडीएम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि आप एक ही बैंडविड्थ में नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा पा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी उनको असाइन कर रहे हो, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ ये टेक्निक देती है। भले आप पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करो, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करो या पल्स पोजीशन करो, ठीक है, उसमें अगर आप टीडीएम यूज कर रहे हो, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो दैट मींस यू कैन एनहांस द यूज ऑफ योर बैंडविड्थ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ हमारे पास फिक्स्ड है, उसमें हम नंबर ऑफ यूजर्स को बढ़ा दें तो दैट मींस वे हम उनको ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं इस बैंडविड्थ को। तो टीडीएम टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ना है आपको गूगल से भी। ओके, नाउ नॉइज की बात कर लेते हैं हम। what is the meaning of noise in continuous wave modulation? continuous wave modulation का मतलब ये जो एनालॉग मॉड्यूलेशन है आपका, चाहे आपका एनालॉग मॉड्यूलेशन हो चाहे पल्स मॉड्यूलेशन हो, ये दोनों ही कैटेगरी कैसी है, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन की। So noise analysis in continuous wave modulation is carried out in the form of parameter known as figure of merit. अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी सिग्नल को आपने ट्रांसमिटिंग एंड से ट्रांसमिट किया और रिसीवर एंड पर रिसीव किया, तो नॉइज की जो कैलकुलेशन होती है, कितना नॉइज उसमें मर्ज हुआ, कितना नॉइज उस ट्रांसमिट से रिसीवर एंड पर जाने में उसमें मर्ज हो गया, अनवांटेड सिग्नल जो मर्ज हुए, तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म बना दी गई जिसको फिगर ऑफ मेरिट कहा गया और जिसको गामा से डिनोट करते हैं। फिगर ऑफ मेरिट या फिर गामा, गामा इज द सिंबल। तो गामा की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू, गामा इज इक्वल टू आउटपुट सिग्नल टू नॉइज। ये बच्चों ये जो सिंबल है गामा, इसको कई बुकों में वाई लिखा हुआ है, फिगर ऑफ मेरिट को कई बार बुकों में दूसरा सिंबल लिया हुआ है, तो आप सिंबल पर मत जाइए, आप इसका नाम याद रखिए, फिगर ऑफ मेरिट, एंड इट इज इक्वल टू आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो डिवाइडेड बाय इनपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो, SNR। इसको क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, SNR, इस पूरी टर्म को, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, इसको कहा जाता है SNR। तो SNR वो वैल्यू होती है कि हमारी सिग्नल पावर कितनी है और नॉइस पावर कितनी है। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो अगर ये ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि नॉइस ज्यादा है, सिग्नल की पावर कम है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस सिग्नल में, ट्रांसमिट सिग्नल में नॉइस का रोल ज्यादा हो गया है। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो को हमने कम से कम करना होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमें इफेक्टिवली एडजस्ट करना पड़ता है, जिससे कि हम अपना ट्रांसमिटिंग एंड पर से सिग्नल रिसीवर एंड पर परफेक्टली रिसीव कर पाए। अगर एक सिग्नल टू नॉइस रेशियो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि नॉइस का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। तो आउटपुट जो है, ये फिगर ऑफ मेरिट है, वो इस बात को इंडिकेट करती है कि जो आउटपुट एंड पर सिग्नल टू नॉइस रेशियो आया है और जो इनपुट एंड पर हमने सिग्नल भेजा था उसमें कितना नॉइस था। क्योंकि इनपुट एंड पर भी बहुत सारा नॉइस होता है, केवल एटमॉस्फेयर ही नॉइस नहीं देता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं ना, वो भी नॉइस इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे मेन सिग्नल में, जिसको फ्लिकर नॉइस कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है तो वाइब्रेशन की वजह से भी उसमें कुछ साउंड इफेक्ट आता है, नॉइज आती है, और कंपोनेंट जो होते हैं हीट करते हैं तो हीट की वजह से भी हीटिंग इफेक्ट उसमें आता है। तो इन सारे इफेक्ट की वजह से भी कुछ सिग्नल, जो मेन सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है ट्रांसमिटिंग एंड पर, उसमें भी नॉइज ऐड होता है। तो इनपुट सिग्नल जब मैंने ट्रांसमिट एंड पर जनरेट किया था उसमें कितना नॉइज था, तो जब वहां पे उसका रेशियो निकाला गया इनपुट एंड पर, तो उसे कहा गया इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो। और जब रिसीवर एंड पर आपने आउटपुट सिग्नल रिसीव किया है तो उसमें एटमॉस्फेरिक नॉइज भी ऐड हो गया। तो रिसीवर एंड पर आपने सिग्नल रिसीव किया तो आपने देखा कि सिग्नल की जो पावर थी ट्रांसमिट एंड पर जो हमने ट्रांसमिट की थी वो कितनी डिक्रीज हुई है और उसमें नॉइज का इंटरफेरेंस कितना हुआ है। तो ये गामा जो है ये फिगर ऑफ मेरिट है और ये डिसाइड करती है कि इन नॉइज, हमारा इफेक्टिव नॉइज की कैलकुलेशन के लिए ये फिगर ऑफ मेरिट की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर मैं आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो को एस नॉट अपॉन एन नॉट से रिप्रेजेंट करूं और इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो को एस आई अपॉन एन आई से रिप्रेजेंट करूं, तो ये एक फिगर है जो जिसे आप इजीली समझ पाओगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक्स है,
एक्सचेंज द मैसेज सिग्नल। ट्रांसमिटिंग एंड पर मैंने मॉड्यूलेटर यूज किया जिसको ट्रांसमीटर एंटीना लगा ट्रांसमिट कर दिया। एटमॉस्फेरिक नॉइज को मैंने एंटी से रिप्रेजेंट कर दिया। एंटी इज द एटमॉस्फेरिक नॉइज जो कि स्टॉप होती है आपके मेन ट्रांसमिटिंग सिग्नल में। और रिसीवर एंड पर आप हमेशा बैंड पास फिल्टर यूज करते हो। और रिसीवर एंड पर जो आपका सिग्नल आपको मिला SI/NI, उसको डीमोडुलेटर पे आप भेजा तो डीमोडुलेटर पे आप भेजोगे तो SI/N मिलता है। तो कहने का मतलब इतना है, ट्रांसमिटिंग एंड पर जो सिग्नल था वो SI/NI था, लेकिन उसमें नॉइज ऐड करने के बाद भी जो आपको रिसीवर एंड पर सिग्नल मिल रहा है बैंड पास फिल्टर से पास करने के बाद, उसको आप SI/NI बोलते हो। फिर डीमोडुलेटर से पास करके जो सिग्नल मिलता है उसको NOT बोलते हैं। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमेशा ये ऐसा SI/NI रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रांसमिटिंग एंड पर जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो, लेकिन नेचुरल जो एटमॉस्फेरिक नॉइज है उसको भी आप इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो में ऐड कर लेते हैं। यानी कि योर इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज नथिंग बट योर कंप्लीट मॉड्यूलेटर ट्रांसमीटर प्लस एटमॉस्फेरिक नॉइज इज इक्वल टू द इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो। एंड आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज नथिंग बट आफ्टर डिमॉड्यूलेशन। हेलो सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा, एक मिनट रुकिए। अब साउंड आ रही है बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो ये एक ग्राफ है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना। इसमें ट्रांसमीटर एंड और रिसीवर एंड दोनों दिखाए हुए हैं, और इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो और आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो का डिफरेंस इन्होंने बताया है। यहां तक जो सेक्शन है इसको इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो कहा जाता है। यानी कि जो ट्रांसमीटर एंड पर सिग्नल जनरेट हुआ वहां पर जो नॉइज इंट्रोड्यूस हुई प्लस द एटमॉस्फेरिक नॉइज भी ऐड हुई आपके मैसेज सिग्नल में, उसको भी आप रिसीवर एंड पर रिसीव जब करते हो तो भी आप उसको SI/NI बोलते हो। उसके बाद डीमॉड्यूलेटर से पहले, रिसीवर एंड पर डीमॉड्यूलेटर से पहले जो भी सिग्नल स्ट्रेंथ और नॉइज की स्ट्रेंथ होती है उसको इनपुट सिग्नल स्ट्रेंथ बोला जाता है। और डीमॉड्यूलेशन के बाद में जो आपको मिलता है वो आउटपुट SNR होता है। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना। नॉइज को हमेशा एंटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो को SI/NI से, और आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो को S0/N0 से। और इन दोनों का जो डिफरेंट होता है आउटपुट SNR अपॉन इनपुट SNR, उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं आपका फिगर ऑफ मेरिट्स। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं, अजम्पशंस टू कैलकुलेशन ऑफ फिगर ऑफ मेरिट। अब बात आती है कि फिगर ऑफ मेरिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि नॉइज को कैलकुलेट करना है ना हमने, हमारे नॉइज कैलकुलेशन हमारा मेन टास्क है। तो हम वो फिगर ऑफ मेरिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ इसके बाद में मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। ये जो PDF है मैं अपलोड कर दूंगा आज 5th यूनिट में। आप इसको डाउनलोड कर लेना, और ये जो अजम्पशंस हैं, जो कैलकुलेशन हम फिगर ऑफ मेरिट को कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में मैं DSBSC सिस्टम लूंगा। DSBSC सिस्टम में कितनी नॉइज आती है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। वहां उसका फिगर ऑफ मेरिट निकाल के इनपुट सिग्नल की पावर, आउटपुट सिग्नल की पावर और उसका SNR वैल्यू निकाल के हम जो DSB सिग्नल में जो SNR की वैल्यू आती है इनपुट और आउटपुट पर, उसको निकालकर और नॉइस पावर निकालकर उनका डिवाइड करके हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि DSB सिग्नल में नॉइस का इंटरफेरेंस कितना होता है। तो हमारा कौन सा सिस्टम परफेक्ट होगा जिसमें नॉइस का इंटरफेरेंस कम से कम हो, चाहे वो DSB हो, SSB हो, FM हो और AM हो। तो मैंने आपको कहा था कि जो FM में नॉइज इंटरफेरेंस कम होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइज इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, उसको हम प्रूव करेंगे यहाँ पे नॉइज कैलकुलेट करके। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडे। नाउ आई एम stop recording first. Just wait a minute. I'm going to stop the recording. And it is saved in my drive. Okay, I will share you. ओके सर।